میں نے نکھت کو اس کی اسکول کے گیٹ پر چھوڑا ہی تھا کہ ایک اجنبی عورت میرے قریب آئی اور بولی، آپ نکھت کی نئی ماں سمینا ہو نا؟ میں نے کہا ہاں۔ میں اس اجنبی عورت کے اچانک پوچھے گئے اس سوال سے حیران تھی۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ وہ بولی میرا نام شاہبہ ہے اور میں نے اپنے 6 سال کے بیٹے کا اسی اسکول میں ایڈمیشن کروایا ہے۔ آپ کی بیٹی نکھت اور میرا بیٹا ساگر دونوں ایک ہی کلاس میں ساتھ ساتھ بیٹھتے ہیں اور دونوں بہت ہی اچھے دوست بن گئے ہیں۔ ساگر گھر پر پورے دن نکھت کی ہی باتیں کرتا ہے۔ کئی دنوں سے میں آپ سے ملنا چاہتی تھی اور آخر آج آپ مل ہی گئی۔ صاحبہ کی باتوں کو سن کر مجھے تھوڑا عجیب لگا کیونکہ میری سوتیلی بیٹی نکھت کی عمر ابھی 6 سال کی تھی، جس کا ایڈمیشن اس اسکول میں نے پچھلے مہینے ہی کروایا تھا۔ 1 مہینے میں ہی صاحبہ کا بیٹا اور میری بیٹی اچھے دوست ہو گئے تھے، یہ تو میں بھی جانتی تھی کیونکہ نکھت گھر میں کئی بار ساگر کا نام لیتی تھی۔ میں نے کبھی نکھت کی اس بات پر غور نہیں کیا تھا۔ صاحبہ کی بات سن کر میں تھوڑا مسکرائی اور بولی، اچھی بات ہے کہ بچوں کی دوستی کی وجہ سے آپ نے مجھے پہچان لیا، لیکن آپ کو میرا نام کیسے پتا چلا اور یہ کہ نکھت میری سگی بیٹی نہیں ہے؟ کیا یہ بات آپ کے بیٹے نے آپ کو بتائی؟ میرے اس سوال پر شاید صاحبہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ بولی، نہیں شمینا، دراصل میں آپ کے شوہر رفیق کو اچھی طرح جانتی ہوں، وہ مجھے بہن کہتے ہیں۔ کبھی وہ اوکھلا میں میرے گھر کے پاس ہی رہا کرتے تھے، لیکن 2 سال پہلے انہوں نے جاگیر نگر میں گھر لے لیا۔ پچھلے سال جب رفیق نے تم سے دوسری شادی کی تو وہ میرے گھر شادی کا کارڈ دینے آئے تھے اور میں اپنے شوہر فرقان کے ساتھ تمہاری شادی کے ریسیپشن میں بھی گئی تھی۔ صاحبہ کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نے کہا، آپ سے مل کر اچھا لگا، میں لیٹ ہو رہی ہوں اسی لیے گھر جا رہی ہوں۔ جاگیر نگر میں رفیق نے ایک فلیٹ لیا ہوا تھا۔ یہ فلیٹ بلڈنگ کے 3رے فلور پر تھا۔ گھر میں میری ساس بھی رہتی تھی، انہیں گٹھیا کی بیماری تھی جس کی وجہ سے 3ری منزل سے نیچے چڑھنا اترنا ان کے بس میں نہیں تھا، اسی لیے وہ زیادہ تر سمے فلیٹ کے اندر ہی رہتی تھی۔ کبھی کبھی جب ماں کو ہاسپٹل لے کر جانا ہوتا تو بڑی مشکل ہو جاتی۔ میرے شوہر اپنی ماں سے بے حد پیار کرتے تھے۔ جب بھی انہیں ماں جی کو کہیں لے جانا ہوتا، رفیق انہیں گود میں اٹھا کر نیچے تک لے جاتے۔ رفیق صبح اٹھ کر اپنے جاب کے لیے نکل جاتے۔ نکھت کو اسکول تک لانے لے جانے کا کام میں خود ہی کرتی تھی۔ نکھت میری سوتیلی بیٹی ضرور تھی، لیکن میں کبھی اسے سوتیلا برتاؤ نہیں کرتی تھی۔ میں نکھت کو کسی چیز کی کمی نہ ہونے دیتی، یہی وجہ تھی کہ نکھت بھی مجھ پر بھروسہ کرنے لگی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سگی ماں کی جگہ دنیا میں کوئی بھی دوسری عورت نہیں لے سکتی۔ میں اس بات کو جھٹلا تو نہیں سکتی تھی، لیکن میں نے یہ ضرور سوچا تھا کہ سوتیلی ماں کے بارے میں جو لوگوں کی سوچ ہے وہ میں ضرور بدل دوں گی، اور میں اپنے اس مقصد میں تھوڑی بہت کامیاب بھی ہو رہی تھی۔ رفیق کی بیٹی نکھت کو میں شام کو پارک میں گھمانے لے جاتی، اسے بڑھیا کپڑے پہناتی اور اس کے ساتھ خوب مستی کرتی۔ یہ دیکھ کر میری ساس مجھ سے کافی خوش رہتی، ساتھ ہی رفیق کے دل میں بھی میری عزت کافی بڑھ گئی تھی۔ رات کو جب رفیق گھر آئے تب تک نکھت سو چکی تھی۔ رفیق نے سوئی ہوئی نکھت کے ماتھے کو چوما اور پھر اپنی ماں کے پاس بیٹھ گئے۔ میں ان کا کھانا ہمیشہ کی طرح ان کی ماں کے کمرے میں لے گئی اور وہیں بیٹھ گئی۔ میں نے صاحبہ سے صبح ہوئی ملاقات کے بارے میں بتایا تو رفیق نے کہا، صاحبہ اور اس کا شوہر فرقان بہت اچھے لوگ ہیں۔ کبھی وہ میرے پڑوسی ہوا کرتے تھے، لیکن پچھلے 2 سالوں سے میں بھی کام میں اس قدر بزی ہو گیا کہ ان سے ملنے کی فرصت ہی نہ نکال پایا۔ ایسا کرتے ہیں کہ اس اتوار کے دن انہیں یہیں کھانے پر بلا لیتے ہیں، کیسا رہے گا؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کل صبح جب نکھت کو اسکول چھوڑنے جاؤں گی تو صاحبہ سے اتوار کو دعوت کے لیے کہہ دوں گی۔ اگلی صبح مجھے اسکول کے گیٹ پر ہی صاحبہ مل گئی اور میں نے اسے اتوار کو دعوت پر آنے کو کہا تو صاحبہ مسکراتے ہوئے بولی، رفیق سے کہنا کہ اس کی باجی اس سے ناراض ہے، جب تک تم دونوں میاں بیوی میرے گھر نہیں آؤ گے تب تک میں تمہارے گھر نہیں آؤں گی۔
रहूंगी। शाम को रफीक के घर आने के बाद जब मैंने साहिबा की नाराजगी वाली बात रफीक को बताई तो वो मुस्कुरा गया और बोला, ठीक है, इस इतवार को हम दोनों ही साहिबा के घर चलेंगे। मैं फोन करके साहिबा को इस बात की इत्तला कर देता हूँ। इतवार के रोज निखत को साथ लेकर हम दोनों मियाँ बीवी साहिबा के घर की ओर निकल पड़े। साहिबा के घर रात की दावत थी। हम लोग समय से पहले ही साहिबा के घर के सामने खड़े थे। घर क्या, यह एक छोटा सा मकान था। तंग गलियों से होकर यहाँ तक आसानी से पहुँचना भी मुश्किल था। मालूम नहीं साहिबा ऐसे जगह पर कैसे रहती होगी। कुछ ही देर में हम दोनों मियाँ बीवी साहिबा के छोटे से घर में थे। हमें देखकर साहिबा के साथ साहिबा का शौहर फुरकान भी काफी खुश था। निखत तो सागर को देखते ही खुशी के मारे उछल गई। दावत खत्म होने तक दोनों बच्चे पूरे घर में मस्ती करते रहे। साहिबा का शौहर फुरकान और रफीक पहले से एक दूसरे को बखूबी जानते थे। दावत के दौरान मालूम चला कि साहिबा के शौहर फुरकान की जॉब छूट गई है। खाने के बाद भी हम लोगों की काफी देर तक बातें होती रही। रफीक और फुरकान बातों में लगे थे। तभी साहिबा ने कहा, शमीना छत पर चलो, मैं तुम्हें अपना छोटा सा बागीचा दिखाती हूँ। रफीक और फुरकान को नीचे छोड़ मैं साहिबा के साथ उसकी छत पर थी, जहाँ छोटी सी जगह में साहिबा ने खूबसूरत बागीचा बनाया हुआ था। रात के वक्त भी कुछ फूल खिले हुए नजर आ रहे थे। मैंने साहिबा से कहा, साहिबा आपका बागीचा वाकई खूबसूरत है। मैं मेरठ में थी तब मैंने भी अपने घर के आंगन में ऐसा ही बागीचा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी शादी हो गई। और मेरी बात को बीच में काटते हुए साहिबा ने कहा, शमीना रफीक से तुम्हारी शादी किन हालातों में हुई मैं सब जानती हूँ और तुम बेहद कमजोर इंसान हो, यह भी मैं जान गई हूँ। आखिरी लाइन में साहिबा के तल्ख लहजे को मैं समझ न पाई। मैंने कहा, मैं आपकी बात नहीं समझी। साहिबा ने कहा, तुम्हें एक बार अख्तर की मजबूरियों को भी तो समझना चाहिए था शमीना, उसकी भी तो कोई मजबूरी रही होगी। साहिबा के मुंह से अख्तर का नाम सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने कहा, साहिबा उस कमीने के बारे में मुझे कोई बात नहीं सुननी है, मैं नीचे जा रही हूँ। मेरे इतना कहते ही साहिबा ने मेरे हाथों को पकड़ लिया और बोली, शमीना तुम रफीक के साथ खुश होने का दिखावा करती हो, जबकि सच तो ये है कि तुम आज भी अख्तर से मोहब्बत करती हो। तुम दुनिया से यह सच छुपा सकती हो लेकिन खुद से नहीं। मैंने साहिबा के हाथों से अपना हाथ छुड़ाया और सीधे रफीक के सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, रफीक हम लोग लेट हो गए हैं, अम्मी को दवाई भी खिलानी है। साहिबा भी छत से आकर मेरे पीछे ही खड़ी थी। उसने भी हमें रोकने की कोशिश नहीं की और अगले 1 घंटे में हम दोनों अपने फ्लैट पर पहुंच गए। बिस्तर पर आते ही रफीक गहरी नींद सो गए, लेकिन मेरी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। साहिबा की बातें मुझे परेशान कर रही थी। 1 साल पहले ही मेरी रफीक से शादी हुई थी। यह रफीक की दूसरी शादी थी और मेरी भी। रफीक और मेरी शादी नहीं बल्कि एक तरह का बदला था। 2 साल पहले रफीक की पहली बीवी नाजो मेरे पहले हस्बैंड अख्तर के साथ भाग गई थी। रफीक और अख्तर चचेरे भाई थे। मेरठ में दोनों का घर आसपास ही था। अख्तर से मेरी शादी को 3 साल हो गए थे। मुझे रफीक अच्छा लगा, इसीलिए मैंने अपनी छोटी बहन नाजो से उसकी शादी की बात घर में चलाई और नाजो के साथ रफीक की शादी हो गई। लेकिन शादी के तुरंत बाद ही रफीक दिल्ली आ गया और जाकिर नगर में जॉब करने लगा और इधर उसकी नई नवेली दुल्हन नाजो उसका इंतजार करती रही। जब भी नाजो रफीक के साथ दिल्ली जाने की बात करती, वो हर बार यही कहता कि दिल्ली में जब तक वो अपना फ्लैट नहीं खरीद लेता तब तक नाजो को दिल्ली नहीं बुलाएगा। नाजो की शादी को 1 साल बीते और इसी बीच नाजो प्रेग्नेंट हुई और उसने एक बेटी को जन्म दिया। धीरे धीरे 3 साल बीत गए। इस बीच मेरठ में नाजो का इंतजार और दिल्ली में रफीक का संघर्ष जारी रहा। नाजो और रफीक की बेटी निखत 3 साल के हो चुकी थी। तीज त्योहार को रफीक 2-4 दिनों के लिए मेरठ आता और फिर दिल्ली चला जाता। मैं भी नाजो को लेकर बेहद परेशान थी। नाजो मेरे पड़ोस में ही रहती और मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि मेरी सगी बहन नाजो ने अपनी तन्हाइयों का हल निकाल लिया था और उसकी तन्हाइयों का साथी कोई और नहीं बल्कि मेरा शौहर अख्तर ही था। एक
दिन दोनों घर से गायब हो गए। 6 महीने तक जब दोनों की कोई खबर नहीं लगी तो मैं मायूस हो गई। महीनों तक मुझे यह समझ नहीं आया कि मैं अपनी बहन की धोखेबाजी पर रोऊं या अपने शौहर की बेवफाई पर रोऊं। इसमें दोष किसका था, अख्तर का या नाजो का? कभी लगता कि सारा दोष रफीक का था। अगर वो अपनी बीवी नाजो से मोहब्बत करता तो नाजो को अख्तर की जरूरत ही न पड़ती। अगर रफीक नाजो को दिल्ली लेकर चला जाता तो फिर मेरी खुशहाल गृहस्थी यूं बर्बाद होने से बच जाती। अख्तर के लिए मेरे मन में नफरत के अलावा कुछ बाकी न रह गया था। 6 साल के शादीशुदा रिश्ते को उसने एक झटके में बर्बाद कर दिया था। यूं तो मैं रफीक को अपनी जिंदगी में बर्दाश्त करना नहीं चाहती थी, लेकिन अख्तर से बदले की आग ही मुझे रफीक के करीब ले आई। 1 साल पहले जब रफीक ने मुझसे शादी की बात कही तो मैंने रफीक से शादी के लिए हाँ कर दी। मुझे लगा कि जब ये बात अख्तर तक पहुँचेगी तो शायद उसे अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन रफीक से मेरी शादी को 1 साल बीतने के बाद भी अख्तर का कोई सुराग नहीं मिल पाया था। रफीक से मेरी शादी के वक्त निखत 5 साल के थी। मुझे शक था कि निखत रफीक की नहीं बल्कि अख्तर की बेटी है। इसके बावजूद मैं निखत को अपनी बेटी ही मान चुकी थी। आज साहिबा के मुंह से अख्तर की बात सुनकर मैं हैरान थी। मुझे साहिबा की बात सुननी चाहिए थी। आखिर वो अख्तर को कैसे जानती है? अख्तर के साथ बिताए हुए 6 साल मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन समय था, लेकिन अब वक्त बदल चुका था और वक्त के साथ रिश्ते भी बदल चुके थे। जो रफीक कभी मेरा देवर हुआ करता था अब वो मेरा शौहर था और इन सब के लिए अख्तर खुद ही जिम्मेदार था। साहिबा से मेरी मुलाकात को चंद रोज ही तो हुए थे, लेकिन मैं रफीक के साथ बोरिंग सी जिंदगी जी रही थी। ये साहिबा कैसे जानती थी? यह सब सोचते हुए सुबह हो गई। सोमवार का दिन था। रफीक उठते ही ड्यूटी के लिए तैयार होने लगा और मैं भी निखत को स्कूल के लिए जगाने अपनी सास के रूम की ओर बढ़ी। तभी रफीक ने कहा, शमीना, कल फुरकान ने बताया कि उसकी जॉब छूट गई है तो मुझे उनके हालात पर बेहद दुख हुआ। कभी ऐसा भी वक्त था जब मुझे दिल्ली में कोई जानता भी नहीं था। तब फुरकान और उसकी बीवी साहिबा ने ही मुझे अपने घर में पनाह दी थी। आज वक्त आ गया है कि मैं उनकी मदद करूं। मैंने कहा, आपको जैसा ठीक लगे जरूर कीजिए। रफीक के लिए नाश्ता तैयार करने के बाद मैंने निखत को तैयार किया और उसे लेकर स्कूल के गेट पर पहुंच गई। निखत को उसकी क्लास में पहुंचाने के बाद मैं वापस स्कूल के गेट तक पहुंची और साहिबा का इंतजार करने लगी, लेकिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आई तो मैं घर लौट आई। अगले कई दिनों तक मैं स्कूल के गेट पर साहिबा का इंतजार करती रही, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। क्लास में सागर के न रहने पर निखत भी अब स्कूल जाने से कतराने लगी थी। सुबह सुबह वो स्कूल न जाने की जिद पकड़कर रोने लगती। फिर जैसे तैसे मैं उसे स्कूल छोड़कर आती। एक दिन मैं निखत के क्लास में गई और उसकी क्लास टीचर से साहिबा की बेटे सागर के बारे में पूछा तो उसने बताया कि सागर अब इस स्कूल में नहीं पढ़ता। उसके घर वाले कई महीनों से स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे थे। मेरे ऊपर स्कूल के प्रिंसिपल का दबाव था। पिछले शनिवार को ही मैंने सागर के पेरेंट्स को कॉल कर स्कूल बुलाया। सागर की माँ आई तो उन्हें प्रिंसिपल ने सख्त लहजे में कह दिया कि अगर स्कूल के फीस भरने की औकात नहीं तो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाओ, और तब से सागर स्कूल नहीं आया। क्लास टीचर से यह बात सुनकर मुझे साहिबा पर बेहद तरस आने लगा। स्कूल से अपने घर आने की बजाय मैंने साहिबा के घर के लिए ऑटो पकड़ लिया, लेकिन जब मैं साहिबा के घर पहुंची तो उसके दरवाजे पर मोटा सा ताला देखा। पड़ोस में पता किया तो मालूम चला कि कुछ दिनों पहले ही साहिबा और फुरकान मकान बेचकर चले गए। कहाँ गए ये बात किसी पड़ोसी को मालूम नहीं था। मैंने ऑटो वाले से कहा कि मुझे जाकिर नगर ले चलो। मेरे चेहरे की बेचैनी को इस वक्त कोई भी आसानी से पढ़ सकता था। मुझे अपनी अक्ल पर भी गुस्सा आ रहा था। इतने दिनों से साहिबा मुझे मिलती रही, लेकिन मैं उससे उसका फोन नंबर तक नहीं ले पाई थी। साहिबा को लेकर मुझे रफीक पर भी बेहद गुस्सा आ रहा
था, क्योंकि वो साहिबा और फुरकान को लेकर सिर्फ हमदर्दी भरी बातें ही करता रह गया। अगर रफीक के दिल में सच में साहिबा के लिए थोड़ी हमदर्दी होती तो वो वक्त रहते दोनों की मदद जरूर करता। शाम को जब रफीक घर आया तो मैंने उसे सारी बात बता दी। आखिर में मैंने कहा, तुम्हारे पास तो उनका नंबर होगा ही, पूछो कि दोनों ओखला छोड़कर कहाँ चले गए। मेरे सवाल पर रफीक मुस्कुराया और बोला, उस दिन जब हम साहिबा के घर दावत पर गए थे तब तुम साहिबा के साथ छत पर चली गई थी। नीचे मैं और फुरकान रह गए थे। तब मुझे फुरकान ने अपने हालात के बारे में सब कुछ बता दिया था। तब से मैं उन्हें लेकर बेहद परेशान था। मैंने तुम्हें बताया भी था, पिछले हफ्ते ही मैंने फुरकान को गुड़गांव में जॉब दिला दी। गुड़गांव से ओखला आना जाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता, इसीलिए ओखला वाला प्लाट बेचकर फुरकान ने गुड़गांव में ही फ्लैट खरीद लिया है और उसके बेटे सागर का एडमिशन भी वहीं हो गया है। अब उनकी सारी मुश्किलें खत्म हो चुकी हैं। दोनों बेहद खुश हैं। रफीक की बात सुनकर मैं बेहद हैरान थी। साथ ही मुझे रफीक पर बेहद फख्र भी हो रहा था। उसने फुरकान और साहिबा का एहसान को चुका दिया था। साहिबा को लेकर मेरी चिंताएं खत्म हो गई थी। मैंने रफीक से कहा, तुमने इतना बड़ा काम कर दिया और मुझे खबर तक न दी। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कम से कम मुझे तो यह बात मेरे पूछने से पहले बता दिए होते तो मैं इतनी परेशान न होती। रफीक ने कहा, मैं तुम्हें बताने ही वाला था लेकिन भूल गया था। मेरे फोन से साहिबा का नंबर ले लो और उससे बात कर लो। मुझे साहिबा से कुछ और भी बातें करनी थी जो मैं रफीक के सामने नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने साहिबा का नंबर अपने फोन में सेव तो किया लेकिन रफीक के सामने उसे कॉल नहीं लगाया। अगली सुबह जब मैं निखत को स्कूल छोड़ आई तब तक रफीक अपनी ड्यूटी के लिए निकल चुके थे। मैंने अपनी सास को नाश्ता देकर उन्हें उनकी सुबह वाली दवाई खिलाई और अपने कमरे में आकर साहिबा को फोन लगा दिया। उधर से आवाज आई, आप कौन? मैंने कहा, आवाज से पहचानो कि मैं कौन हूँ। साहिबा ने कहा, ओह मैं पहचान गई, शमीना कैसी हो? मैं बोली, अब तुम्हें मेरे से क्या मतलब है? अगर मेरी इतनी ही फिक्र होती तो मुझे बताए बिना तुम ओखला छोड़कर यूं न भाग जाती। साहिबा ने कहा, शमीना मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं था और मैंने रफीक से तुम्हारा नंबर मांगा भी था तो उसने कहा था कि जल्द ही गुड़गांव हमारे नए फ्लैट पर तुम्हें साथ लेकर आएगा। वैसे भी मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। मैंने कहा, उस दिन अख्तर के बारे में तुम कुछ कहना चाहती थी लेकिन अचानक तुम्हारे मुंह से अख्तर का नाम सुनकर मैं उस वक्त घबरा गई थी, इसीलिए तुम्हारे घर से चली आई। तब से मैं यही जानने के लिए बेचैन हूँ कि तुम अख्तर को कैसे जानती हो। साहिबा ने कहा, शमीना तुमसे मुझे बहुत सारी बातें करनी है। अगर तुम्हारे पास समय हो तो तुम आज ही मुझे साकेत मेट्रो के पास वाले पार्क में मिलो। मैंने कहा, निखत को स्कूल से घर लाकर मैं निकल जाऊंगी। वो बोली, ठीक है, जब तुम निकलना तो मुझे कॉल कर देना, मैं भी गुड़गांव से साकेत के लिए मेट्रो पकड़ लूंगी। दोपहर के 3 बजे थे और मैं साकेत मेट्रो के गेट नंबर 2 के पास वाले पार्क में थी। पेड़ की छांव में पड़ी एक खाली बेंच पर मैं साहिबा के साथ बैठी हुई थी और पहले की मुकाबले वो बेहद खुश नजर आ रही थी। मैंने समय बर्बाद न करते हुए साहिबा से कहा, साहिबा मुझे घर पहुंचने में भी वक्त लगेगा। रफीक की अम्मी को शाम की दवा भी खिलानी है। मैं उनसे बहाना मार के यहाँ आई हूँ, इसलिए जो भी बात है मुझे जल्दी बता दो। साहिबा बोली, क्या तुम रफीक के साथ खुश हो? मैं बोली, साहिबा इस बात से अब क्या फर्क पड़ता है? मेरे लिए वो एक अच्छा शौहर न हो लेकिन दुनिया के लिए रफीक एक बेहतरीन इंसान है। उसके दिल में सबके लिए जगह है और मुझे खुशी है कि मैं एक बेहतरीन इंसान के साथ रहती हूँ। साहिबा ने कहा, शमीना तुम एक जवान और खूबसूरत औरत हो और तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। मैं जानती हूँ कि रफीक एक नेक दिल इंसान है और उसने लोगों को बहुत कुछ दिया है, लेकिन एक बीवी को अपने शौहर से जिस सुख की जरूरत होती है वो रफीक तुम्हें नहीं दे सकता। ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। साहिबा पहली मुलाकात से मुझे हैरान करती हुई आ रही थी और उसकी इस बात पर तो
मैं और ज्यादा हैरान हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी निजी जिंदगी की पूरी किताब साहिबा पढ़ चुकी हो। मैंने अपनी हैरानी को जाहिर करते हुए साहिबा से पूछा, साहिबा तुम ये सब कैसे जानती हो? साहिबा बोली, बात 10 साल पुरानी है। तुम्हारा पहला शौहर अख्तर अपनी MBA की पढ़ाई दिल्ली से कर रहा था, तब उसकी तुम्हारे से शादी भी नहीं हुई थी। MBA के दौरान ही अख्तर और मेरे शौहर फुरकान की अच्छी दोस्ती हो गई। MBA फाइनल करने के बाद अख्तर को मेरठ की एक कंपनी में जॉब लग गई और फिर उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया। 7 साल पहले अख्तर अपने भाई रफीक को लेकर दिल्ली आया था, तब अख्तर की तुमसे शादी हो चुकी थी। रफीक भी दिल्ली से MBA करना चाहता था, लेकिन दिल्ली में रहने के लिए उसके पास कोई ठिकाना नहीं था। तब मेरे शौहर फुरकान ने अपनी पुरानी दोस्ती की खातिर अख्तर के भाई रफीक को अपने घर में ही जगह दे दी। साहिबा बीते दिनों में इस कदर खोई हुई थी कि उसे समय का अंदाजा भी नहीं था। 6 बजे से पहले मुझे घर पहुंचना था, लेकिन साहिबा से अब तक की बातचीत के दौरान ही 4 बज चुके थे। मैंने कहा, साहिबा मुझे जल्दी घर पहुंचना है, तुम मुझे बस इतना बता दो कि तुम मेरी पर्सनल बातें कैसे जानती हो और अख्तर इस वक्त कहाँ है? साहिबा ने कहा, शमीना रफीक के घर में तुम्हें दुनिया के सारा सुख मिलता है, लेकिन तुम्हें वो सुख हरगिज नहीं मिलता जो तुम्हें अख्तर से हासिल होता था। और यह बात मैं इसलिए अच्छी तरह जानती हूँ क्योंकि जब रफीक मेरे घर में रहता था तब मैंने रफीक के साथ जिस्मानी रिश्ता कायम करने की कोशिश की थी और मुझे उसकी हकीकत पता चल गई थी। वो नामर्द है, ये बात मैं जान गई थी। तुम्हारी बहन नाजो रफीक के इसी कमजोरी की वजह से उसे छोड़ गई। जब 1 साल पहले रफीक ने तुमसे शादी की, तभी से मुझे तुम्हारी किस्मत पर तरस आने लगा था और जब तुम मुझे स्कूल पर मिली तब से मैं तुम्हें लेकर परेशान रहने लगी। मैं अख्तर से मिली जो सादिक नगर में नाजो के साथ रहता है। वो जब नाजो को लेकर दिल्ली आया था उसे मेरे शौहर फुरकान ने ही सादिक नगर में मकान दिलाया और फुरकान ने ही उसे अपनी कंपनी में जॉब भी दिलाई। मैंने कहा, अख्तर दिल्ली में रहे या जहन्नुम में, इससे अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी बीवी के साथ खुश है तो मैं भी अपने शौहर के साथ मजे में हूँ। जिस्मानी सुख से ऊपर भी कई और चीजें होती हैं जिनके सहारे जिंदगी को जिया जा सकता है। तुम अब मेरी चिंता करना छोड़ दो साहिबा, मैं जा रही हूँ और आइंदा मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। इतना कहकर मैं बेंच पर से उठी ही थी कि साहिबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, शमीना पूरी बात तो सुनती जाओ, उसके बाद जो तुम्हें अच्छा लगे करना। 2 साल पहले तक अख्तर और नाजो बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, लेकिन तभी एक हादसा हो गया। नाजो और अख्तर की कार का एक्सीडेंट हुआ। दोनों दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल के ट्रामा सेंटर में 2 महीने तक एडमिट रहे। अख्तर धीरे धीरे ठीक हो गया, लेकिन नाजो हमेशा के लिए पैरालाइज हो गई। डॉक्टर्स ने कह दिया कि अब वो कभी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाएगी। पिछले 2 साल से नाजो बिस्तर पर है। अख्तर उसकी हर तरह से तीमारदारी करता है। उसे इस वक्त तुम्हारी जरूरत है, तुम एक बार उससे मिल लो। अख्तर और नाजो की यह हालत सुनकर मुझे बेहद दुख हुआ। अख्तर से मिलने की कोई ख्वाहिश मेरे अंदर नहीं थी, लेकिन मैं अपनी बहन से मिलना चाहती थी। मुझे लगा कि इस वक्त अख्तर को नहीं बल्कि मेरी बहन को मेरी जरूरत होगी। नाजो ने मेरे साथ भले ही कितना भी गलत किया, लेकिन आखिर थी तो मेरी बहन ही ना। दोनों बहनों ने साथ मिलकर बचपन बिताया था। आज मैं उसे इस हाल में देखने भी नहीं गई तो मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगी, जिसने गरीबी और दुखों के बावजूद हमारी परवरिश में कोई कमी न आने दी थी। मैंने साहिबा से कहा, मुझे अभी नाजो के पास ले चलो, मैं रफीक को फोन कर सब कुछ बता देती हूँ, वो भी वहाँ पहुँच जाएगा। साहिबा ने कहा, रफीक को नाजो के बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे नाजो के बारे में सब कुछ पहले से मालूम है। साहिबा की इस बात पर मैं एक बार फिर से चौंक गई। मैंने कहा, अगर रफीक को नाजो के दिल्ली में रहने की बारे में सब कुछ पहले से मालूम था तब उसने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? साहिबा ने कहा,
तुम नाजो के घर चलो, वहीं सब कुछ पता चल जाएगा। हम दोनों ने साकेत के बाहर से ऑटो पकड़ा और 6 बजे से पहले सादिक नगर में अख्तर के फ्लैट पर पहुंच गए, जहां मैंने पूरे 3 साल बाद अख्तर को देखा। वो नजरें नीचे किए हुए किसी गुनहगार की तरह मेरे सामने बैठा हुआ था और बगल की बेड पर मेरी बहन नाजो लेटी हुई थी। मुझे देखते ही उसकी आंखें भर आई, लेकिन वो मुझसे मिलने के लिए बिस्तर से उठ पाने की स्थिति में नहीं थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसकी इस हालत पर मैं भी खुद को न रोक पाई और रोने लगी। इस बीच रफीक भी पहुंच गया, जिसे वहां देखकर मैं और भी ज्यादा चौंक गई। अख्तर के घर में साहिबा सभी के लिए चाय बनाने में लग गई। अख्तर तो कुछ बोल पाने की औकात खो चुका था। तभी रफीक ने मुझसे कहा, शमीना, आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी माँ की वजह से हूँ। पूरी जिंदगी मेरी माँ ने अपने शौहर के जुल्म को झेला। मेरा बाप ऐसा जालिम इंसान था जो शराब के नशे में मेरी माँ को बुरी तरह पीटता और उसे अक्सर घर से निकाल देता। वो अपने शौहर के जुल्म से तंग आकर मरना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ के मरने से पहले ही मेरा बाप कैंसर से मर गया। मेरी माँ ने मेरी खातिर ही सब कुछ झेला था। मैंने अपनी माँ के बुरे हालातों को अपनी आंखों से देखा था, इसीलिए मैं अपनी माँ की हर ख्वाहिश को पूरी करने की खातिर कुछ भी कर सकता था। मैं किसी से भी शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन माँ के ख्वाहिश भी थी कि मैं शादी कर लूं, तो मैंने नाज से शादी कर ली। मैं अपनी कमजोरियों को जानता था, इसीलिए मैंने अपने चचेरे भाई अख्तर को नाजो के करीब जाने के लिए मनाया, ताकि वो नाजो की उन जरूरतों को पूरा कर सके जो मैं नाजो को नहीं दे सकता था। लेकिन नाजो ने अख्तर को ही अपना सब कुछ मान लिया और एक दिन दोनों मेरठ छोड़कर दिल्ली आ गए। रफीक की बातों को सुनकर मुझे मर्द जात से नफरत होनी शुरू हो गई थी। रफीक ने अपनी माँ को खुश करने के लिए एक साथ कई जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया था। मैंने गुस्से में कहा, जब एक बीवी भाग गई थी और तुम्हें अपनी कमजोरी पता थी, तब मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी। रफीक ने कहा, नाजो के जाने के बाद मेरी माँ को बहुत ही गहरा सदमा लगा। वो बीमार रहने लगी और जल्द ही वो इतनी ज्यादा बीमार हो गई, मुझे अम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी मेरी माँ ने मुझे दूसरी शादी के लिए ऐसी जिद पकड़ ली कि उसने खाना पीना भी बंद कर दिया। वो कुछ दिनों की मेहमान थी। ऐसे में मुझे लगा कि मैं कुछ दिनों के लिए किसी से शादी कर अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दूं। तब मैंने तुमसे बात की और तुम राजी हो गई, लेकिन तुमसे शादी के बाद मेरी माँ की तबीयत ठीक हो गई और माँ को तुम्हारे साथ खुश देखकर कभी तुम्हें यह सब बताने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। लेकिन अब और मैं तुम्हारी जिंदगी के साथ खेलने की हिम्मत नहीं कर सकता। तुम जब चाहो मुझसे तलाक ले सकती हो। साहिबा चाय लेकर आई, लेकिन मैंने उसकी चाय को छुआ भी नहीं। अख्तर के घर में अब मेरा दम घुटने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अगल बगल बैठे सभी लोग मेरे दुश्मन थे। मैं झट से उठी और वहाँ से निकलकर सीधे जाकिर नगर अपने घर पहुँच गई, जहाँ निखत और मेरी सास मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब ये दोनों भी मुझे दुश्मन ही नजर आ रहे थे। मैं अपने कमरे में गई और अंदर से कुंडी बंद कर फूट फूट कर रोने लगी। अगली सुबह मैंने अपना सामान पैक किया और सीधे मेरठ के लिए निकल आई। मैंने रफीक को मैसेज कर दिया था कि मैं अब कभी लौटकर दिल्ली नहीं आऊंगी। अपनी माँ की खुशी के लिए किसी और औरत को ढूंढ लो। धीरे धीरे 3 महीने बीत चुके थे। मैं अपने मायके में अपने भाई और भाभी के बीच रहकर खुश नहीं थी, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मेरा अपना कोई घर नहीं था, इसीलिए भैया के घर पर रहना मेरी मजबूरी बन गई थी। एक दिन मैं सुबह उठी ही थी कि साहिबा का कॉल आया और उसने बताया कि उसकी बहन नाजो का इंतकाल हो गया है। हो सके तो आज ही दिल्ली पहुंच जाएं। मैं दिल्ली न जाने की कसम खाकर मेरठ आई थी, लेकिन खबर ऐसी थी कि मुझे दिल्ली जाना ही पड़ा। मेरे भैया के लिए तो नाजो पहले ही मर चुकी थी, इसीलिए नाजो के जनाजे में शामिल होने से
उन्होंने इनकार कर दिया। मैं अकेले ही सादिक नगर पहुंची और अगले कई दिनों तक मैं साहिबा के घर पर ही रही। एक दिन मैं साहिबा के फ्लैट की बालकनी में खड़ी किसी सोच में गुम थी कि साहिबा मेरे करीब आई। साहिबा ने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, अख्तर को अपनी गलती का एहसास है, लेकिन शर्मिंदगी की वजह से वो तुम्हारे सामने नहीं आ पा रहा है। हो सके तो उसे माफ कर दो और अपनी जिंदगी की गाड़ी को पुरानी पटरियों पर ले आओ। साहिबा की यह बात सुनकर मैं कुछ न बोली और मेरठ जाने की तैयारियों में लग गई। साहिबा खाना बना चुकी थी, लेकिन मुझे भूख नहीं थी। मैंने अपने फोन से रेलवे स्टेशन तक के लिए कैब बुक किया और अपना सामान उठाकर निकलने को हुई। तभी साहिबा एक बार फिर मेरे करीब आई और बोली, तुम्हारी कैब यहाँ पहुँचने से पहले ही रफीक और अख्तर यहाँ पहुँच जाएंगे। कैब कैंसिल कर दो और मेरठ मत जाओ। मैंने गुस्से में साहिबा से कहा, साहिबा तुम खुद को समझती क्या हो? मैं कोई खिलौना नहीं जो कोई भी मर्द मुझसे अपने हिसाब से खेले और फिर उसे डस्टबिन में फेंक दे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अकेले जिंदगी नहीं जी सकती? अकेली ना भी जीऊं तो मेरी जिंदगी में अख्तर जैसा इंसान दोबारा क्यों? मैं किसी मर्द के बिना भी जी सकती हूँ। मुझे अब ना तो रफीक जैसे कमीने इंसान की जरूरत है और ना ही अख्तर जैसे धोखेबाज के। मुझे परेशान ना करो साहिबा। मेरी बात खत्म होने से पहले ही दरवाजे पर गाड़ी रुकने की आवाज आई तो मैं झट से अपना सामान लेकर दरवाजे तक पहुंच गई, लेकिन वहां मेरी कैब की जगह रफीक की गाड़ी थी। जिसमें से रफीक को उतरते देखा तो मैं गुस्से से लाल हो गई। रफीक के साथ अख्तर भी गाड़ी से उतरा। आखिर में जो आदमी गाड़ी से उतरा वो मेरा भाई रिजवान था। भैया के साथ मेरी भाभी भी थी। मेरी कैब कैंसिल हो चुकी थी और हम सभी लोग साहिबा के ड्राइंग रूम में बैठे थे। मेरे भैया भाभी ने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं अब किसी भी सूरत में अख्तर को नहीं अपना सकती थी। तभी अख्तर मेरे करीब आया और बोला, मुझे माफ कर दो शमीना, मैं अपनी गलती पर बेहद शर्मिंदा हूँ। अख्तर की इस बात पर मेरा मन किया कि उसे जोर से थप्पड़ मारूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। तभी रफीक ने एक पेपर मेरे सामने करते हुए कहा, ये तलाक के पेपर हैं, इसमें साइन कर दो और हो सके तो मुझे भी माफ कर दो शमीना। मैं भी अपने दिल के हाथों मजबूर हो गई और आखिरकार अख्तर फिर से मेरा शौहर बन गया है। 1 साल बीत चुके हैं। रफीक की माँ अब इस दुनिया में नहीं है। जाकिर नगर में रफीक अब अकेला ही रहता है। जिंदगी में इतने जोड़ तोड़ के बाद भी रफीक को सिवाय तन्हाइयों के कुछ न मिला। निकाह अब 8 साल की हो चुकी है और मेरे साथ सादिक नगर में ही रहती है। मेरी सगी बहन नाजो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन साहिबा अब मेरी जिंदगी में मेरी सगी बहन से ज्यादा अहमियत रखती है। कहानी से सीख, रफीक की एक गलती की वजह से समीना की जिंदगी तो उजड़ी ही, साथ ही नाजो की जिंदगी में भी भूचाल आ गया। रफीक की एक गलती से 2 सगी बहनें बर्बाद हो गई। अपनी कुंठाओं को शांत करने के लिए दूसरों की जिंदगियों को दांव पर लगाने का नतीजा हमेशा बर्बाद ही होता है। इतना याद रखे कि अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करने वाले लोगों का हश्र आखिर में रफीक जैसा ही होता है। आखिरकार रफीक को सिवाय तन्हाई के क्या हासिल हुआ? आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ सबसे ओरिजिनल कहानियाँ। शुक्रिया आप